أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج ہماری چوتھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج بھی وہی موضوع ہمارا ہے کہ قادیانی ہی کافر کیوں. اس موضوع پر بات تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے پردے اٹھتے بھی جا رہے ہیں، اور بہت سارے وہ عقیدے جو ہمارے ملکوں کے اندر ولایت اور تقدس اور عقیدت اور ارادت کے نام پر مختلف جماعتوں اور فرقوں کے اندر موجود ہیں، ان عقیدوں کا بھی پتہ چلتا جا رہا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے دنیائے صوفیت کے چوٹی کے صوفیہ، جنہیں ہمارے ملکوں کے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، صوفی منصور حلاج اور بہت سارے نام ہیں اس سلسلے میں، انہیں اپنا بہت بڑا شیخ اور بہت بڑا ولی اور بزرگ تصور کرتے ہیں. انکار ختم نبوت کے تعلق سے میں نے ان کے عقیدوں کو گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا. فتوحات مکیہ اور الجواقیت والجواہر کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ لوگ کتنا گھٹیا اور کتنا کفرانہ عقیدہ ان کا ہے ابن عربی کا، اور اسی طرح سے عبد الوہاب شعرانی، جو دنیا بریلویت میں رضی اللہ تعالی عنہ اور نہ جانے کیا کیا سیدی عبد الوہاب کے نام سے جانے جاتے ہیں. میرے عزیز، وحدت الوجود کے تعلق سے اس عقیدے سے بھی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. ابن عربی کا جو عقیدہ تھا وحدت الوجود کا، لیکن اس میں ایک بات تشنا رہ گئی تھی، اور میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ پچھلے صوفیہ اور موجودہ دور کے جو صوفیہ ہیں اس زمانے میں، جنہوں نے مختلف پردوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور کتاب و سنت کا نام لے کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے عقیدے ان میں پھونک رہے ہیں غلط طریقے سے، ان عقیدوں کا میں نے وعدہ کیا تھا مقارنہ کراؤں گا، میں ملاؤں گا بھی. وحدت الوجود جو ابن عربی کا عقیدہ تھا، صوفی منصور حلاج کا عقیدہ تھا، جس کی بنیاد پر علماء اسلام نے، علماء اہل سنت والجماعت نے انہیں کفر کا فتویٰ دیا، اور حنفیوں کے سب سے بڑے امام
सबसे बड़े इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के अंदर सूफी मंसूर हल्लाज पर कुफ्र का फतवा लगाकर और उसे कत्ल करने का हुक्म दिया और उसे कत्ल करवाया गया। लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर यही फिरके, खाह वो देवबंदी हों या बरेलवी हों, अपने इस इमाम के फतवे की बुनियाद पर भी मुत्तफिक नहीं हैं और सूफी मंसूर हल्लाज के अकीदे को अपनी किताबों के अंदर नोट करते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनकी किताब चाहे शमाए में इमदादिया हो या और भी जो उनकी लिखी हुई किताबें, उनके अंदर उनके अकीदे मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जो आबिद और माबूद में फर्क करे, इबादत करने वाले और इबादत की गई जात में जो फर्क करे वो मुशरिक है। उनका यह अकीदा है। और यह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मौजूदा दौर के और बिल्कुल 50, 60, 100 साल पहले या 100 साल के बीच में जहां से देवबंदियत की पैदावार हुई है और जो देवबंदी फिरका जहां से वजूद हुआ है, इनके बड़े बड़े अइम्मा, चाहे मौलाना अशरफ अली साहब थानवी हों, मौलाना रशीद अहमद गंगोही हों, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हों, चाहे महमूद हसन अम्बेडवी हों, कोई भी हो, इन सब के पीर और मुर्शिद आला कहलाए जाते हैं। उनका यह अकीदा था। बल्कि वो तो यहां तक कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो तुख्म, वो बीज अल्लाह की, और उसकी मिसाल उन्होंने दी कि अल्लाह की मिसाल ऐसे ही है, नऊज़ बिल्लाह लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन उन्होंने मिसाल बयान की और कहा अल्लाह की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक तुख्म के, एक बीज के है, कि अल्लाह एक बीज की मानिंद है। तो जिस तरह बीज को जमीन में छुपा दो, फिर उसके बाद शाखें और तना और जड़ पैदा होते हैं और फिर वो बीज उसमें फना हो जाता है, इसी तरह अल्लाह की मिसाल कि अल्लाह एक बीज की मानिंद था, फिर उसने इस दुनिया को पैदा किया तो खुद बखुद इसमें फना हो गया। यानी अल्लाह और जो चीज, जो बीज है वही पेड़ है, जो पेड़ है वही बीज है, तो जो दुनिया है वही अल्लाह है, जो अल्लाह है वही दुनिया है। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह के अकीदे इन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखे। लेकिन ये अकीदे बमागे दोहल नहीं बयान किए जाते हैं, बल्कि जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में, पिछली तकरीर में मैंने बताया था कि जुनैद बगदादी ने क्या कहा कि मंसूर हल्लाज बेवकूफ था जिसने अपने अकीदे का इजहार कर दिया, हम बच गए, हमने इस अकीदे को, इस राज को उसे फाश नहीं करना चाहिए था, इस राज को फाश नहीं करना चाहिए था। उसी खुत्ते और उसी नमूने पर चलते हुए मौजूदा दौर ये गुमराह पार्टियां हमारे मुल्कों के अंदर लोगों को किताब और सुन्नत का नाम सिर्फ लेती हैं, लेकिन उनके ईमान और अकीदे उसके मुताबिक नहीं है। अमल तो खैर बात की बात है, पहले ईमान और अकीदा जो बुनियाद है वो है। यही वहदतुल वजूद का अकीदा। मैं आपको बताऊं कि इब्न अरबी का मकाम और सूफी मंसूर हल्लाज का मकाम, चाहे उलमाए बरेलविया तो बदनाम ही हैं, इनके यहाँ तो ये रदी अल्लाह तआला अन्हु रदी अल्लाह पता नहीं क्या क्या हैं। सूफी मंसूर हल्लाज जिसको इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के अंदर कुफ्र का फतवा देके कत्ल किया, यही मौलाना रशीद अहमद गंगोही की किताब फतावा रशीदिया मेरे हाथ में है। इसमें सूफी मंसूर हल्लाज के ताल्लुक से जब इनसे सवाल किया गया कि हजरत सूफी मंसूर हल्लाज के सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, सवाल करने वाले में ने इमाम अबू यूसुफ का नाम भी लिया कि हजरत मंसूर की जिनको जमाने इमाम अबू यूसुफ साहब में सूली दी गई थी, उनकी निस्बत आप क्या फरमाते हैं, वो कैसे थे? तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही कहते हैं कि मंसूर माजूर थे, बेहोश हो गए थे, उन पर फतवा कुफ्र का देना बेजा है। अस्तगफिरुल्लाह। और मैं कहता हूं कि जो सूफी मंसूर को काफिर न माने वो भी काफिर है, क्योंकि सूफी मंसूर हल्लाज ये बेहोश नहीं हुआ था, ये जादूगर था, खबीस, ये जिंदीक था। इसने हिंदुस्तान में जाके जादूगरी सीखी और इसने न जाने कहां कहां जाकर के इसने ऐसे ऐसे अकीदे ईजाद किया, अस्तगफिरुल्लाह, कि आज उम्मत और मैंने बताया था कि बड़े बड़े लोग उसकी लपेट में थे। यही मंसूर हल्लाज था जो अदन हक का नारा लगाता था। और आज भी ये कबर परस्त मुजावर मुराकबीन और इस तरह के लोग और इनके सूफियों से मुंसलिक लोग, चाहे नक्शबंदी, सारवर्दी, चिश्ती, कादरी, जिसकी तरफ अपनी निस्बतें करते हैं, ये लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, इस अकीदे के अंदर। चुनांचे कहा, फिर साइल ने सवाल किया हजरत से कि हजरत मंसूर जिनको दार पर चढ़ाया गया था, यानी सूली पर चढ़ाया गया था, फतावा रशीदिया सफा नंबर 222, और ये छपी हुई किताब है मोहम्मद अली कारखाना इस्लामी कुतुब दुकान नंबर 2 उर्दू बाजार कराची नंबर 1, वहां की छपी हुई ये किताब है। कहते हैं मंसूर जिनको दार पर चढ़ाया गया था, ये आपके नजदीक वली हैं या नहीं? अगर वली हैं तो ये कौन सी मंजिल में थे, कुर्बे नवाफिल में या कुर्बे फराइज में? अगर वली नहीं हैं तो किस दीन में हैं? जवाब